चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण की संकल्पना। अब देखिए बीपीओ में आप क्या देखें, कॉल सेंटर है, आप कॉलिंग सर्विसेज कर रहे हैं, अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं। चलिए केपीओ में भी कुछ है, क्या है पढ़ते हैं। केपीओ इज अ न्यू phenomenon that is picking pace in India. It is known as knowledge process outsourcing. In simple words, it is the upward shift of BPO in value chain. Old BPO companies that used to provide basic backend and customer care support are moving up this value chain. Unlike conventional BPO where their focus is on process expertise, in KPO the focus is on knowledge expertise. ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण KPO एक नई सच्चाई है जो भारत में गति पकड़ रही है। सामान्य शब्दों में यह मूल्य श्रृंखला में पूर्वाभिमुख परिवर्तन है। पुरानी बीपीओ कंपनियां जो मूल्य समर्थित अथवा ग्राहक देखभाल समर्थन सेवाएं प्रदान करती रही हैं, इस मूल्य श्रृंखला को ऊपर की ओर उठा रही हैं। परंपरागत बीपीओ जहां प्रक्रिया विशेषज्ञता पर जोर देती है, वहीं केपीओ में ज्ञान विशेषज्ञता पर जोर दिया जाता है। केपीओ इन्वॉल्व्स offshoring of knowledge intensive business process that require specialized domain expertise, thus delivering high value to organizations by providing business expertise rather than just process expertise. KPO उन ज्ञान सधन व्यवसाय प्रक्रियाओं में संलग्न है जिनके लिए विशिष्ट ज्ञान क्षेत्र विशेषज्ञता की आवश्यकता है। अतः प्रक्रिया विशेषज्ञता की बजाय व्यवसाय विशेषज्ञता उपलब्ध कराकर संगठनों को उच्च मूल्य दिए जाते हैं। बिजनेस के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है यह भी यहाँ पे होता है। सिर्फ प्रोसेस नहीं देखा जा रहा है, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर वो सब चीज हम लोग देखते हैं। It is being claimed that KPO is one step extension of business process outsourcing BPO. BPO industry is shaping into knowledge process outsourcing because of its favorable advantages and future scope. But let us not treat it only a B replaced by a K. In fact, knowledge process can be defined as high added value processes chain where the achievements of objectives is highly dependent on the skills, domain knowledge and experience of the people carrying out the activity. जो ये काम कर रहे हैं उनका नॉलेज, एक्सपीरियंस, उनकी विशेषज्ञता, उनका स्किल सब कुछ इसमें मायने रखेगा। And when this activity gets outsourced, a new business activity emerges, which is generally known as knowledge process outsourcing. KPO is involved in services like valuation and investment research, patent filing, legal and insurance, etc. KPO can simply be explained as offshoring knowledge, concentrated business processes that needs specialized domain-oriented expertise. यह दावा किया जाता है कि KPO व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण BPO से एक कदम आगे है। ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण KPO के अनुकूल लाभों तथा भविष्य के कार्य क्षेत्र के कारण BPO उद्योग भी ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण का रूप ले रहा है, परंतु इसे B के स्थान पर K के रूप में नहीं मानना चाहिए। वास्तव में ज्ञान प्रक्रिया को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, यह अतिरिक्त मूल्य प्रक्रिया श्रृंखला है जिससे उन उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होती है जो संबंधित क्रिया में संलग्न व्यक्तियों की उच्च कुशलता, विशिष्ट ज्ञान व अनुभव पर निर्भर करते हैं। जब इस क्रिया का बाह्य स्रोतीकरण किया जाता है तो एक नई व्यावसायिक क्रिया का जन्म होता है जिसे सामान्यतः ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण कहते हैं। Knowledge process outsourcing KPO is the allocation of relatively high-level tasks to an outside organization or a different group, possibly in the different geographic location.
within the same organization. Most low-level BPO jobs provide support of an organization's non-core competencies, and entry-level prerequisites are simply a command of English and basic computer skills. Knowledge process outsourcing jobs, in comparison, are typically integrated with an organization's core competencies. The jobs involve a more complex task and may require an advanced degree and/or certification. Examples of KPO include accounting, market and legal research, web designing, and content creation. ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण तुलनात्मक रूप से उच्च स्तर के कार्य को किसी बाह्य संगठन अथवा संगठन के भीतर ही एक भिन्न समूह, संभवतः किसी भिन्न भौगोलिक स्थिति वाले स्थान पर स्थित, को सौंपना है। अधिकांश निम्न स्तर के बीपीओ कार्य किसी संगठन की कम महत्वपूर्ण क्षमताओं तक प्रविष्ट स्तर पूर्वापेक्षाओं जैसे अंग्रेजी में प्रवीणता तथा कंप्यूटर में कुशलता के लिए समर्थन प्रदान करते हैं। इसकी तुलना में ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण कार्य किसी संगठन की मुख्य क्षमताओं से वर्गीय दृष्टि से एकीकृत है। इनमें अधिक कठिन कार्य संलग्न होते हैं और इनके लिए उच्चतर स्तर की डिग्री अथवा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। केपीओ के उदाहरणों में लेखांकन, बाजार एवं कानूनी अनुसंधान, वेब डिजाइन तथा विषय वस्तु नव निर्माण सम्मिलित हैं। कहने का मतलब बीपीओ में क्या होता है, कंपनीज का कुछ काम ही दिया जा रहा है, उसके लिए अगर आपको इंग्लिश आता है, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपका काम बन जा रहा है। लेकिन केपीओ में ऐसा नहीं होगा। केपीओ में आपको काफ़ी ज्ञान होना चाहिए, या तो आपके पास डिग्री होना चाहिए या कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस चीज़ पे आप काम करना चाहते हैं। इसमें अकाउंट्स, मार्केट, ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। केपीओ एंड बीपीओ आर ऑफन कंडक्टेड थ्रू ऑफशोर आउटसोर्सिंग as corporations seeking the most value for the least money source projects to the countries where wages are lower. Because KPO jobs may bring in more money to the economy as BPO, countries such as India are actively promoting development of that industry. KPO और BPO प्राय अब तक बाह्य स्रोतीकरण करते हैं क्योंकि निगम कम पैसे वाली परियोजनाओं की खोज में उन देशों की कंपनियों को कार्य देते हैं जहां मजदूरी कम होती है। क्योंकि केपीओ कार्यों से बीपीओ कार्यों की अपेक्षा अर्थव्यवस्था को अधिक मुद्रा मिलती है, भारत जैसे देश इस उद्योग के विकास को काफी बढ़ावा दे रहे हैं।